Hare Krishna. We'll begin our session with prayers. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। So today we have reached a milestone in our Bhagavad Gita classes discussion. Today is the 200th session of Bhagavad Gita discussion, which we have been doing for over 2 years now. तो पिछले 2 साल से हम 200 सत्र कर चुके हैं भगवद गीता का। आज 200वें सत्र है। We have finished 13 chapters out of 18 chapters. So we have about 5 chapters to go: 14, 15, 16, 17, 18. And 14 to 17 are very small chapters. And 18 is a big chapter, the conclusion. So we are expecting to take another 85 to 100 episodes to complete the discussion of Bhagavad Gita. So detailed discussion we are doing. हम लोग भगवद गीता का बहुत ही गहरा डिस्कशन कर रहे हैं। And it's a permanent record. All these sessions will be there in YouTube, in the channel, in my name, and anybody can listen to it anytime. And you can also share it with your friends and family and encourage them to listen. Of course, the primary study material for all of us is हमारे लिए जो प्रिंसिपल स्टडी मटेरियल है वो भगवद गीता एज इट इज बाय श्रीला प्रभुपाद जी का भगवद गीता यथारूप। तो आज 14वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और जैसे कि हमारी रीति है, what we have followed in Bhagavad Gita discussion is, we first, after every chapter, we first do a general overview of Bhagavad Gita, and additional points of Bhagavad Gita. फिर हम एक अवलोकन का सेशन रखते हैं जिस चैप्टर का हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। लाइक वी आर स्टार्टिंग ऑफ 14 चैप्टर, तो इसलिए आज हम 14वें अध्याय का अवलोकन करेंगे। पिछले सत्र में हमने एक ओवरव्यू ऑफ भगवद गीता किया था, मतलब कंप्लीट ओवरव्यू। एंड लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड 14 ओवरव्यू सेशंस ऑफ भगवद गीता, और हर एक चैप्टर का एक एक ओवरव्यू, वो अनदर 14 चैप्टर्स, अनदर 14 सेशंस। तो इससे 28 सेशंस यही हो गया, और बाकी के 172 sessions have been Bhagavad Gita and the chapters, the chapter-wise discussion. So I recommended all of you, please keep going back to this YouTube channel which I have created for benefit of all of you, और वहाँ पे आपको ये भगवद गीता का सेशंस को सुनते रहना है। तो the complete Bhagavad, it's like an audio book of भगवद गीता यथारूप with some additional points. तो भगवद प्रभुपाद का यथारूप जो है उसका आप समझ लीजिए, आप ये 200 एपिसोड अब तक जो हुआ है वो एक ऑडियो बुक है। तो जहाँ पे हम पूरे भगवद गीता यथारूप में प्रभुपाद जी के दिए हुए श्लोका, ट्रांसलेशन एंड भावार्थ ये हम कर चुके हैं। सो sometimes even I go back and listen to this session because I would have made notes for this. I would have taken points from here and there from Prabhupada lectures and added to it. So very comprehensive material, and I'm very much sure that
all those who listen to it will get immensely benefited because we have based it on Srila Prabhupada's Bhagavad Gita Yatharup. In fact, it is Bhagavad Gita Yatharup with additional points. तो आज का चैप्टर 14 चैप्टर का नाम है द थ्री मोड्स ऑफ मेटल नेचर त्रिगुण. सो इफ वी नोटिस हर एक अध्याय दूसरे अध्याय से जुड़ा है. कृष्णा हैज अरेंज्ड हिज philosophical treatise, his advice, भगवत गीता का बोधन उन्होंने कैसे अरेंज किया है कि ऑफकोर्स रणभूमि में जब अर्जुन सुन रहे हैं उसको ये नहीं बता रहे अब 13वां अध्याय खत्म हो गया, अब हम 14वां अध्याय प्रारंभ करेंगे. वेद व्यास जी ने उनको अलग अलग अध्याय में दिया हुआ है, वरना कृष्णा ने उनको कंटिन्यूसली बोधन किया था. लेकिन देर वॉज अ end to one topic and the beginning of another part of discussion, and Veda Vyas intelligently has divided them into chapters. ऐसा नहीं कि कृष्णा बोल रहा था अब मैं 14वां अध्याय का पहला श्लोक सुनाने जा रहा हूं, सुन लेना. He didn't say 14.1 and now 14.2. He went on answering questions of Arjuna and trying to counsel him. First, in the first chapter, he was just an onlooker as a friend. दूसरे अध्याय से जब अर्जुना टेक्स शेल्टर ऑफ कृष्णा एज गुरु, शिष्यस्ते हम शादी मां प्रपन्न, तो मैं आपका शरण में आ गया हूं, आप मुझे एक शिष्य की तरह मानिए और मुझे आप ज्ञान का प्रकाश कराइए. सो मोमेंट कृष्णा हियर्स दिस, कृष्णा changes his role play from friend to the spiritual master, and he takes this opportunity to become Jagat Guru. Adi Guru, Jagat Guru, Adi Jagat Guru is Krishna himself. And if you see all the other things, other uh, holy scriptures are completely based on Bhagavad Gita as it is. So एक तरह से भगवत गीता मूल ग्रंथ है जहां से बहुत सारे और विषय निकल के दूसरे दूसरे ग्रंथ बनते हैं. But you can say that the cream of all Vedic discussion and the Vedic discussion that matters and everything that matters is there in Bhagavad Gita. So that is the specific standard of Bhagavad Gita. हमने इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा, जब आपने प्रभुपाद की यथारूप पढ़ा होगा, एज इट इज पढ़ा होगा, तो प्रभुपाद इन फर्स्ट चैप्टर ऑल्सो फर्स्ट परपर्ट chapter 1.1 purport, Prabhupada talks about specific standard of Gita. गीता का एक आदर्श है. क्या आदर्श है? दुनिया में जो भी ज्ञान है वो आपको भगवत गीता में मिल जाएगा. All knowledge, all kinds of knowledge is there in Bhagavad Gita, in Mahabharata. Bhagavad Gita is a part of Mahabharata. लेकिन भगवत गीता का ये क्या स्टैंडर्ड है? See, everything, every knowledge that is there in all other source of knowledge, it is there in Bhagavad Gita. लेकिन भगवत गीता में ऐसे भी है जो कहीं और आप नहीं पाएंगे. और एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट इट इज 700 श्लोक है, लिमिटेड नंबर ऑफ श्लोकस, लेकिन अनलिमिटेड लर्निंग इज देयर इन भगवत गीता. तो ऑल्दो भगवत गीता में गणन कर सकते हैं कितने श्लोक है, 700 श्लोक है, लेकिन इन 700 श्लोक में सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा और इस 700 श्लोक में सारे उत्तर हमें मिल जाएगा. इस 700 श्लोक में सारे वेद ग्रंथ का आपको सार भी मिलेगा और आपको इन डेप्थ नॉलेज भी मिलेगा. सो इट इज लाइक अ अचिंत्य शक्ति. भगवान श्री कृष्ण का ये अचिंत्य शक्ति है कि इन अ लिमिटेड number of shlokas, unlimited knowledge and things to understand is hidden.
दैट इज अचिंत्य, दैट इज इनकंसीवेबल। भगवान का ये शक्ति को हम, इसलिए भगवान को बोलते हैं अपौरुषेय। और ग्रंथ को, भगवत गीता और शास्त्र भागवतम, ये सब को हम वेद वेद ज्ञान को अपौरुषेय बोलते हैं। व्हाट इज अपौरुषेय? दैट विच इज नॉट रिटन बाय एनी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। ऑफ कोर्स भगवत गीता इज गिवन बाय द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि भगवत गीता भगवान कृष्णा का, भगवान का ऑटोबायोग्राफी है, जहां पे भगवान खुद अपने वर्णन कर रहे हैं। एंड व्हाट कैन बी मोर ऑथेंटिक देन दैट? इससे ज्यादा ऑथेंटिक क्या होगा कि भगवान ने खुद अपना परिचय हमें देने का वो प्रयास कर रहे हैं। सो हर अध्याय और अगले अध्याय के बीच में एक कनेक्शन है। तो ठीक वैसे ही 13वें अध्याय और 14वें अध्याय का एक कनेक्शन है। क्या है ये कनेक्शन? सो 13वें अध्याय में we read, it was explained how the living entity, that is Purusha, is entangled in the external energy. तो बहिरंग शक्ति, भगवान के बहिरंग शक्ति के कारण वो कैसे भौतिक मानसिकता में पुरुषा उलझा हुआ है। और प्रकृति पुरुष को, पुरुष के ऊपर भारी पड़ रहा है। प्रकृति इज इंफीरियर एनर्जी, और पुरुषा लिविंग एंटिटी इज सुपीरियर एनर्जी। लेकिन अ, पतन होने के कारण बद्ध जीव, कंडीशन सोल, इज कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द inferior एनर्जी। सुपीरियर एनर्जी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय inferior एनर्जी। तो ये इम्बैलेंस्ड सिचुएशन है। दैट इज व्हाई वी गेट फ्रस्ट्रेटेड इन मटेरियल लाइफ, क्योंकि जीव आत्मा जानता है कि इस सबसे ऊपर है वो। These are not the matter that really matters. Material matters are not the matters that really matters. What matters is spiritual matter. तो ये, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, और ये दिस दिस हार्ड फैक्ट, इट कैन नेवर बी नेगेटेड। चाहे बच्चा कितने भी बाप से रूठ के बोल सकता है आज से आप मेरे बाप नहीं हो, मैं आपका बेटा नहीं हूं, बट दैट रिलेशनशिप कैन नॉट बी चेंज्ड एट ऑल। फ्रेंडशिप कैन बी ब्रोकन, फ्रॉम टुडे आई एम नॉट योर फ्रेंड, तो क्या बन जाएगा? एनिमी। लेकिन कोई भी बेटा अपने बाप को नहीं बोल सकता कि आज से आप मेरे बाप नहीं हो, कोई और है मेरे बाप आज से। ऐसा हो ही नहीं सकता। सो इट्स एन एटर्नल रिलेशनशिप। So at least in the material world, as long as the father son exists, it's a permanent relationship for them. उसके बाद भी सन ऑफ लेट सो एंड सो हमें लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पापा के गुजरने के बाद कोई और मेरा बाप बन गया और मेरे आधार कार्ड में, मेरे पासपोर्ट में दूसरे बाप को हम लिखेंगे। ये तो ये तो नहीं होता है। सो बाप बाप होता है। सो सिमिलरली कृष्णा इज our eternal father, eternally. He is our, there's no question about having any other substitution for that. लेकिन हम बद्ध जीव होके पतन होने के कारण हम अपने अस्तित्व को कहीं और ढूंढ रहे हैं। और हमारा अस्तित्व क्या है? जीवर स्वरूप होय नित्यर कृष्णदास। तो हमेशा हमेशा के लिए, शाश्वत सनातन काल के लिए जीवा कृष्णा के दास है, और कृष्णा जीव का भरता है, मतलब मेंटेनर है। सो ऑल दिस हैज बीन बॉट आउट बाय कृष्णा इन दी पास्ट 13 चैप्टर्स दैट वी हैव रेड। पिछले 13 अध्यायों में हमने देखा कैसे कृष्णा इज एस्टैब्लिश्ड, हाउ इज द सुप्रीम लॉर्ड, हाउ वी आर द लिविंग एंटिटीज, आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिम, उनका अंश है। और कैसे हमारा संविधानिक स्थिति क्या है कि हम भगवान का, हाँ, हाँ, भगवान भगवान के हम दास हैं। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। तो हम दासों के दास हैं, मतलब भगवान के जो दास हैं उनके दास हैं। दैट इज आवर पोजिशन, दैट शुड बी आवर आइडियल पोजिशन।
सो क्यों ऐसे प्रकृति के पकड़ में, एक इंफीरियर एनर्जी के पकड़ में एक सुपीरियर एनर्जी कैसे आ गया? कारण है ड्यू टू हिज डिजायर फॉर एंजॉयमेंट, ड्यू टू हिज envy of Krishna, because he felt why only Krishna should enjoy, I also want to enjoy. वो भूल गया कि जब कृष्णा एंजॉय करेगा, हमारा एंजॉयमेंट उसमें, इट इज अ पार्ट ऑफ फोरगॉन कंक्लूजन दैट हम भी एंजॉय करेंगे। लेकिन कहीं पे जीव को ये आशा जागृत हुआ कि मुझे ही एंजॉय करना है, कृष्णा को नहीं। आई शुड बी द सेंटर ऑफ एंजॉयमेंट। So we forgot our position as dasa, and that has brought us to this material world. So 14वें अध्याय में वो हम क्या सीखने वाले हैं? हाउ मेटेरियल एनर्जी माइंड्स द सोल थ्रू द थ्री मोड्स ऑफ नेचर। कैसे त्रिगुण आत्मा को एक पिंजरे में बंद कर दिया है, आत्मा को एक पिंजरे में बंद कर दिया है त्रिगुणा। और ये बात हमें 13वें अध्याय के 22वें श्लोक, तो 13वें अध्याय के 22वें श्लोक क्या था? हम क्विकली विल ट्राई टू गो थ्रू दैट। द 13th चैप्टर, 22nd श्लोक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। दैट इज व्हाट कनेक्ट्स 13th चैप्टर एंड 14th चैप्टर। 13वें और 14वें अध्याय का जो ब्रिज है, दिस श्लोका, व्हाट वाज द श्लोका वी रेड? पुरुषा प्रकृतिस्तो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। ये हमने पढ़ा 13वें अध्याय में। इसका अर्थ था द लिविंग एंटिटी इन मेटेरियल नेचर, जीव इस भौतिक प्रकृति में फॉलोज द वे ऑफ लाइफ एंजॉइंग द थ्री मोड्स ऑफ नेचर। त्रिगुणों के त्रिगुणों के प्रभाव में वो अपना जीवन आगे बढ़ाना है। दिस इज ड्यू टू हिज एसोसिएशन विद दैट मटेरियल नेचर। और ये प्रकृति के संग, अ, प्रकृति के एसोसिएशन, द एसोसिएशन ऑफ द थ्री मोड्स हैज मेड द लिविंग एंटिटी assume that material life is everything, is the only thing, is forgotten spiritual nature. Thus he meets with good and evil amongst various species. तो इसी कारण वो अच्छे योनि और not so good life he keeps getting in the cycle of birth and death. So ये जो ज्ञान है 13वें अध्याय के 22वें श्लोक का जो ज्ञान है, वो 14वें अध्याय का आधार बन जाता है। और इसको बहुत ही विस्तार से कृष्णा एक्सप्लेन करके जाने वाले। सो इन ग्रेट डिटेल कृष्णा विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग in the 14th chapter the relationship or the actual meaning of that shloka number 22 in chapter 13. He will start giving a very elaborate discussion. So we can say that uh, the connecting words between chapter 13 and 14 is 13.22. So how is this chapter broken down? In flow. Of course, Krishna didn't break it down like that, or he didn't tell Arjuna that अब मैं ये सुनाने वाला हूँ 14.1 सी 14.1 to 14.4 में ये सुनाऊंगा, इसके बाद ये सुनाऊंगा। वो तो Arjuna was intelligent enough to understand that the theme is changing, the topic is changing, the base of knowledge is changing, and now is Krishna is describing a few other things in a sum total. So the 14th chapter is divided into sections. Section 1 is shloka number 1 to shloka number 4. श्लोका 1 से श्लोका 4 तक एक सेक्शन। तो इसमें हम क्या लर्न करेंगे? So just give me 1 minute. Okay. So here we are going to learn, क्या सीखने वाले हैं कि लिबरेशन एंड
कंडीशनिंग ऑफ लिविंग एंटिटीज। मोक्ष क्या है, और बद्ध जीवी किस किस लिए बद्ध हो गए हैं, वाई द जीवा हैज बिकम कंडीशन। ये हम 14वें अध्याय के 1 श्लोक 4 तक हम सीखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे हाउ कृष्णा ग्लोरिफाइज द नॉलेज दैट ही विल स्पीक। तो कैसे कृष्णा 14वें अध्याय के प्रारंभ में वो वर्णन करते हैं, गुणगान करते हैं कि अब मैं आपको जो ज्ञान देने वाला हूं अर्जुना, उसका ये प्रभाव है, उसका ये उपयोग है। So he will explain to him in that. So by him, the Supreme Lord, that is Krishna say, the material energy is impregnated with living entities. तो कृष्णा समझाएंगे कि कैसे प्रकृति, हम बीज प्रपिता, प्रकृति के अंदर बीज बोया गया है, और उस बीज का स्रोत कौन है, उस सोर्स ऑफ दैट सीड, द सोर्स ऑफ दैट सीड इज Aham Bija Pradapita. I am the father. I am the seed giving father. I am the source of that seed of the living entities. तो living entities एक सीड अगर होंगे तो ये सीड कहाँ से आया, ये भगवान श्री कृष्णा से आया। फिर the second section talks about the three modes, how they bind the pure soul। कैसे त्रिगुणा आत्मा को पिंजरे में बंद करके रखता है। तो ये हम सीखेंगे 14.5 से 14.9 तक। तो श्लोका 5 से श्लोका 9 तक हम सीखेंगे कैसे आत्मा त्रिगुणों के वश में आ चुका है। सो द लिविंग एंटिटी विच इज एटर्नल somehow connects with the material energy through conditioning by three modes of nature। तो त्रिगुणों के वॉट एवर परसेंटेज of sattva guna, and then remaining tamo guna, and whatever is left is rajo guna, ऐसे वेरियस परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से अलग अलग देह मिलता है। तो ये इसके बारे में वर्णन हो रहा है। So Krishna, concluding, one is conditioned by the mode of goodness to happiness। तो त्रिगुण क्या है, सत्व रजस तमा। तो सत्व गुण हमें किस से बांध रहा है, हैप्पीनेस, कि हमें भौतिक खुशियों में वो बांध रहा है। अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे आपको फल मिलेंगे। लेकिन ये कर्मकांड हो गया, ये जीव को भौतिक जगत में बांध के रखेगा। अच्छे कार्य भी अगर भगवान की तरफ ना हो, इफ इट इज नॉट ऑफर्ड एज अ डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, इट बिकम्स कर्मा। तो 1 रुपए भी दान हम देंगे, उसको हमें भोगने के लिए रहना पड़ेगा। तो सो गुड एक्टिविटीज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड ऑल्सो इज बाइंडिंग द पर्सन। सो सत्व गुण से भी ऊपर हमें जाना है। कृष्ण बताता है त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्योर्भवार्जुन। तो त्रैगुण्य से हमें ऊपर जाना है। तो पैशन, रजोगुण से क्या होगा, रजोगुण किससे बांधेगा हमें, फ्रूटिव एक्टिविटीज। तो रजोगुण में क्या होता है, आदमी या औरत वांट्स प्रतिफला, she wants results, she wants or he wants to enjoy the fruits of that results। तो ये रजोगुण में जो रजोगुण मात्रा जिसमें जाता ज्यादा होता है, ऐसे लोग ऐसे मटेरियल गोल्स, मटेरियल पोजेशंस, इसके पीछे रेस की तरह दौड़ते हैं। तो अ, रजोगुण अ, आत्मा को अ, प्रतिफलों के पीछे दौड़ाता है। और इग्नोरेंस, तमोगुण, तमोगुण किससे बांधता है, तमोगुण प्रमत्तः, तो एक आदमी को पागल जैसे बना देता है। पागल मतलब डिस्कनेक्ट बिटवीन रियलिटी, there's a disconnect between himself and reality, the ultimate reality।
completely. He's not even connected with the so-called material world also with purpose. तो एक कटी पतंग की तरह वो इधर उधर डोलता रहेगा। तो जैसे धक्के मिलेगा जिंदगी का, वो डोलता रहेगा। तो दिस इज लाइफ इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो तो तमोगुण में कैसे बहुत जीव बद्ध हो जाता है। नूनम प्रमत्तः, तो वो पागलपन, ऑलमोस्ट लाइक पागलपन, जड़ अवस्था, वर्चुअली इज इन जड़ अवस्था। फिर सेक्शन 3 discusses recognizing more supremacy। तो किस जीव में कौन सा गुण का कितना प्रभाव है और कौन सा बारी है। किसी में सत्व गुण बारी है, किसी में रजोगुण बारी है, किसी में तमोगुण बारी है। So in somebody mode of goodness is more, somebody mode of passion is more, somebody mode of ignorance is more, and in the same person morning is sattva guna is more. That is why we always recommend do spiritual practice in the morning. Then afternoon, late morning, afternoon up to evening, rajoguna tendency is more. रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए हम कामकाज धंधा ये सब इस वक्त करते हैं। फिर शाम के बाद आलस्य आ जाता है, तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है। तो ऐसा इवनिंग आफ्टर यू वांट टू रिलैक्स, कोई काम आप बोलोगे तो छिड़ जाएंगे आप। तो आपको रिलैक्स करना है, आपको नाइट लाइफ चिल करना है। सो दिस कम्स अंडर तमोगुण, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ तमोगुण। सो वी हैव टेंडेंसी टू स्लीप, वी हैव अ टेंडेंसी टू इंडल्ज इन डार्क एक्टिविटीज। आप देखेंगे सारे जो अवैध अनैतिक कार्य होते हैं रात के अंधेरे में होता है, ये तमोगुण का प्रभाव है। लेकिन कलयुग ऐसा है कि उसका प्रभाव सुबह भी रहता है, दोपहर में भी रहता है और शाम को रात को रहता ही है। कलयुग इज अ वेरी डिग्रेडेड एज। सो द मोड्स कम्पीट विद वन अनदर। कभी सत्वगुण ज्यादा हो गया, कभी तमोगुण ज्यादा हो गया। ऐसे उसके आधार पे उसका स्वभाव, उस गुणों के प्रभाव से उसका स्वभाव निखर रहा है। सो सो सत्वगुण से क्या हमें मतलब, सत्वगुण से सत्वगुण का क्या बोलते हैं, रिजल्ट क्या है, ज्ञान। तो ज्ञान पाएगा। और सो नॉलेज इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गुडनेस। पैशन के मैनिफेस्टेशन क्या है, रजोगुण का क्या मतलब, ये होने वाला है कि द अटैचमेंट, अनकंट्रोलेबल डिजायर एंड इंटेंस एंडिवर। तो तो अति परिश्रम करेगा, अत्याहार प्रयास प्रजल्प, ये सब पैशन में होता है। सो अटैचमेंट, अनडिजायर, अनकंट्रोलेबल डिजायर, तीव्र इच्छा किसी के पीछे, तो वो रजोगुण के कारण होता है। सो अटैचमेंट, अनकंट्रोलेबल डिजायर एंड इंटेंस एंडिवर, प्रयास करता है, पागल की तरह काम करना है। पागलपन जो तमोगुण में है वो दूसरी बात है, उसमें कुछ करने का मन नहीं होता। और ये पागलपन दूसरा है, रजोगुण में पागल की तरह मतलब इज वर्किंग लाइक ए डोंकी एंड पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। और तमोगुण का क्या मैनिफेस्टेशन है, इनएक्टिविटी एंड मैडनेस। सो इनएक्टिविटी आलस्य और मैडनेस प्रमत्तः। तो ये ये तमोगुण का प्रभाव है। फिर सेक्शन 4, एक्टिंग एंड डाइंग विद इन द मोड्स। कैसे जीव अपने जीवन में त्रिगुणों के कारण कार्य करता है, और कैसे त्रिगुणों के कारण कैसे कैसे वो मृत्यु पाता है, इन व्हाट डायरेक्शन, इन विच मोड ही विल डाई। दैट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता between shlokas 14 to 18. So both the results of one's action and the results after one's death are predominated by specific mode of nature. तो जिस जीवन में जो हम कार्य कर रहे हैं और अगले जीवन हमें कौन सा मिलने वाला है और कैसी हमारी मौत होने वाली है, किस स्थिति में या दुस्थिति में हमें होने वाला है,
और कैसा हमारा वृत्ति रहेगा, ये जिस कौन सा त्रिगुण प्रभावशाली है, भारी पड़ गया है, उसके ऊपर निर्भर है। सो एंड इट ब्रिंग्स अबाउट सर्टन रिजल्ट्स। तो अच्छे कार्य मतलब, फिर अगला जन्म अच्छा मिल गया। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी ईदमानम मदद पुमान। तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, ये सब पूर्व जन्म का कार्यों से, अच्छे जन्म, अच्छे कर्म, जन्म, फिर अच्छा देह, सौंदर्य, ये सब, अच्छा विद्या, ये सब कैसे मिलेगा? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, ये पूर्व जन्मों के अ, सुखकारी कार्यों से हमें मिलेगा। और वैसे ही द ऑपोजिट्स ऑफ दैट आल्सो इज गॉट बाय बिकॉज ऑफ बैड वर्क्स डन इन प्रीवियस लाइफ्स। कुकर्म की वजह से हमें जो कष्ट मिल रहा है इस जीवन में, वो हमारे पिछले जन्मों का कुकर्मों के कारण है। So, so Krishna uh, talks about these things in this five shlokas. Then, in section 5, which is the last section, chapter is about 27, 14 अध्याय में जो 27 श्लोका है. So, shloka number 19 to 27, it talks about transcending the modes. So, Krishna is giving a solution of, he is telling Traigunya Vishayaveda, Nistrigunya Bhavarjana, how to become that. कैसे निस्त्रैगुण्य बने हमें, कैसे हम सत्व गुण से भी आगे बढ़ के शुद्ध सत्व गुण में आए, विच इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। ट्रांसेंडिंग द मोड्स इज डिस्क्राइब बाय कृष्ण। कैसे हमें, सो इट्स सच अ प्रैक्टिकल बुक भगवद गीता इज। भगवद गीता का इंस्ट्रक्शंस इज वेरी प्रैक्टिकल। इट फर्स्ट टीचर्स अस व्हाट इज रॉन्ग, it then teaches us what is right, and then it shows us why what is wrong has gone wrong, why it has gone wrong. And then in Bhagavad Gita, we get the knowledge of how to correct what has gone wrong. तो ये दैट्स वाई भगवद गीता इज अ साइंस, विज्ञान है। क्योंकि ना बल्कि क्या गलत है वो बता रहा है, फिर क्या सही है वो बता रहा है, फिर कैसे हम गलती को सुधारे, ये भी इसका उत्तर भी वो दे रहा है। और कैसे सही कार्य को हम करते रहेंगे, कैसे शक्ति पाएंगे उसके लिए, हाउ टू बी स्ट्रांग एनफ टू कंटिन्यू इन द राइट पाथ, दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन भगवद गीता। तो कृष्णा इज देयरफॉर इट्स ए मैनुअल ऑफ लाइफ। भगवद गीता हमारे जीवन का एक आदर्श है, मैनुअल है, ऑपरेटर्स मैनुअल है। तो हम हर जीव को, एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग्स शुड read Bhagavad Gita and gain knowledge from it and act accordingly. Most important is act according to the instructions of Bhagavad Gita. So in this last section of this chapter, what do we find? One transcends all the modes by knowing the following 2 points. तो दो ये पॉइंट्स हम याद रखेंगे तो हम भी निस्त्रैगुण्यो, we will become, we will cross over the 3 modes of material nature. What are the 2 points we have to remember? All within this world takes place under the modes. भौतिक जगत में जो भी चल रहा है त्रिगुणों के प्रभाव से ही चल रहा है। कभी सत्व गुण ऊपर है, कभी रजोगुण ऊपर है, कभी तमोगुण ऊपर है। तो इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तालमेल, ऊंच नीच चलता रहेगा। एक ही व्यक्ति में एक ही दिन में अलग अलग समय में अलग अलग स्वभाव होगा, लेकिन एक बेस स्वभाव होगा। somebody is having high percentage of सत्व गुण, तो बेसिक नेचर इज सत्व। लेकिन एक दिन में वो कई जगह बहुत सत्व गुण का प्रदर्शन करता है और कहीं थोड़ा तमोगुण का प्रभाव हमें दिखता है। तो ये हर व्यक्ति के जीवन में हम देखेंगे। तो सेकेंड पॉइंट क्या है? कृष्णाज एक्टिविटीज आर ट्रांसेंडेंटल टू द मोड्स। तो कृष्णा का लीला जो है, कार्य है, वो त्रिगुणों त्रिगुणातीता। तो कृष्णा अनदर नेम इज त्रिगुणातीता। ही इज अबव द 3 modes of material nature. So one who knows this, जन्म कर्म च मे दिव्यम,
जो मेरे जन्म और मेरे कर्म को दिव्य ये जान लेता है. So if somebody knows that the birth of Krishna, the activities of Krishna are transcendental. तो एवं यो वेत्ति तत्वतः, वन हु नोज दिस इन प्रिंसिपल, जो ये सत्य को जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, इस भौतिक जीवन के शरीर के त्याग करने के बाद केवल ये ज्ञान रखने से, तो पुनर्जन्म न इति, तो उसको भौतिक शरीर नहीं मिलेगा. ही विल नॉट गेट अ मटेरियल बॉडी अगेन, ही विल नॉट टेक बर्थ इन द मटेरियल वर्ल्ड अगेन. क्या होगा? माम एति सो अर्जुन. तो कृष्णा इज टेलिंग, इफ दिस पर्सन हु नोज दिस मच, he will come back to me. So simply by knowing Krishna, knowing that his activities and his birth and his transcendental, knowing that he is the master, we are his servant, and our position is to serve him. We will one day serve him, and serving him, we will go back to our original abode of Golok Dham, and there we will serve Krishna eternally in our constitutional position. So Krishna explains in this section, the last section, that one can transcend the modes by engaging unfailingly in full devotional service. Ananyas chintayanto mam. So it is, and also it is unalloyed devotional service. So Krishna talks about how one can engage in unalloyed devotional service and become uh, eligible to go back home, back to Godhead, to his own home and be in his constitutional position. And finally, one will then come to the Brahman platform of which Krishna is the source. ऐसे करने से अहम ब्रह्मास्मि, दिस इज द मीनिंग ऑफ हम ब्रह्मास्मि. इस स्तर जहां पे हम कृष्ण को तत्वतः जानते हैं, that that stage is called the Brahman stage or Brahman realized state. And Krishna is going to explain to us in this chapter how we can all come to the stage of uh, crossing over the three modes and coming to our original transcendental position, constitutional position of being eternally the servants of Krishna. So, thank you very much for joining me today. We've almost come to the end of our stipulated time, and we have come to the end of our overview of chapter 14. So, from the next session, we'll start with discussion of chapter 14 श्लोकास. तो 14वें अध्याय का श्लोका का हम अभ्यास विद्याभ्यास स्टार्ट करेंगे. 27 shlokas may take us about 8 to 9 sessions. And coming up are the interviews for your Prabhupada Ashraya, which might have already begun for some. And then your written test on 11th, that is Sunday, or 10th Saturday evening. Saturday evening is slightly impractical, so Sunday afternoon will be a good time after the